हेलो बेटे, कैसे हैं आप लोग? आ गया जेईई मेंस जिसका इंतजार था। बेटे जेईई जैसे एग्जाम्स के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ मेंटल कूलनेस भी जरूरी है। बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर आपके रैंक्स को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन में हमारे दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। प्रीवियस ईयर्स 2025 में टोटल 14 क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। टोटल फिजिक्स में को करीब हमने 20 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है और हर पार्ट को हम लोग कवर करेंगे एक एक करके, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और अपने रैंक्स को बढ़ाने में ये सीरीज आपको पूरी हेल्प करेगी। सेशन की स्टार्ट करते हैं अपने एक बहुत सुंदर से कोटेशन से। कोटेशन है हमारा, नो मैटर हाउ फार पास्ट यू कैन ऑलवेज हैव ए न्यू बिगिनिंग। कितना भी कठिन पथ क्यों न हो, हम उसे एक नई बिगिनिंग, नए जोश, नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करके उसको जरूर अचीव कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपने एग्जाम्स को नए सिरे से नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं और अपने रैंक्स को, स्कोर को बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद today's session. First question is, a small point of mass small m and distance 2r from the center of a big uniform solid sphere of mass capital M and radius r. The gravitational force on small m due to capital M is F1 and a small part of radius r by 3 has been removed from the big sphere. So we have to find out what are the ratio between the F1 and F2. Question is what? This is a sphere. Let its radius is capital R and at a distance capital R is other small point mass has been put here. So entire mass is here. So first of all we have to find out what is the F1. F1 means force between this entire mass of this and this is small m. Simple C gravitational force हमारा क्या हो गया, कैपिटल G mass of this into mass of this upon radius जो है हमारा कितना है, सेंटर ऑफ यहाँ से 2r है. So this will be what, 2r का whole square. 2r whole square will be what, gm upon 4r square. This is what equation 1 कर सकते हैं. Now we have to find out what will be the force F2 when this small part of radius r by 3 has been removed. So two ways are there to find out the force F2. First we have to find out what will be the center of mass of this remaining part of this solid. Then we can find out what will be the force between this small m and remaining part of the solid. And the other way is that we can find out the force between the mass which has been removed and this is small r, and when we are going to reduce this force from the F1, then we can find out the value of F2. So in this way, in this question we are going to opt this method, and we have to find out the force between the removed part of this mass and this small m. So let the, for F2 what we have to do, first we have to find out what will be the mass of removed part. Mass of removed part कितना हो जाएगा, mass of removed parts, mass of removed part कितना हो जाएगा, let it is m dash है, तो m dash will be what, mass upon 4/3 pi r cube, mass upon total value into 4/3 pi and r by 3 का whole cube. इट विल बी हाउ मच, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई एंड आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी कमिंग अराउंड m/27. सो व्हाट विल बी द रिमूव्ड मास, जो रिमूव्ड मास है m डैश है, उसकी वैल्यू है क्या, जो ओरिजिनल मास है उसका 27 पार्ट हैड बीन रिमूव्ड. So let us find out the force between this removed part and let it is F1 and between small m. What will be, capital G mass m जो अब हमारा m27 हो गया इंटू स्मॉल m अपॉन जो रेडियस है हमारा कितना है, जो रेडियस है हमारी कितनी है, जो रेडियस है हमारी ये r है, और यहाँ से जो कट किया है ये पार्ट, इसकी जो रेडियस है वो r/3 है. सो टोटल रेडियस विल बी व्हाट, r प्लस r/3 यानी 4r/3.
सो यहाँ पर जो रेडियस आ जाएगी कितना आ जाएगी 4r/3 का होल स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रिमूव्ड मास? इट विल बी हाउ मच? इसको आप कर सकते कैपिटल जी मास ऑफ m इंटू स्मॉल m upon 27 and here it will be 3k square in 9 and here it will be what 16r square. क्लियर? यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए. सो इट विल बी हाउ मच? m डैश जो हमारा आ गया कितना g m upon 48r square. This is what m dash gmm upon. This is the force between. This is the force, not m. This is the force gmm. This is what? Force f dash. Clear? So f2 will be what? f1 minus f dash. f हमारा क्या है जी एम अपान 4r स्क्वायर एंड f डैश हमारा कितना है जी एम अपान 48r स्क्वायर. जी एम अपान 4r स्क्वायर एंड माइनस GM अपॉन 48r स्क्वायर. 48r स्क्वायर सो व्हाट विल बी 48r स्क्वायर हम इसमें सेल्सियम ले सकते हैं. तो व्हाट विल बी 12 GM माइनस GM इट विल बी व्हाट 11 GM अपॉन 48r स्क्वायर. 48r स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी कैन से दिस इज व्हाट F2. दिस इज फोर्स. This force is what? F2. ये हमारा F2 है. Now we have to find the ratio of F1 upon F2. What will be F1 upon F2 की वैल्यू है. तो F1 हमारा कितना था GM अपॉन 4r स्क्वायर और F2 कितना है हमारा 11 GM अपॉन 48r स्क्वायर. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा GM इंटू 48r स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ गया 4r स्क्वायर इंटू 11 GM. तो GMM r स्क्वायर और इसको आप कर दीजिए कितना 12 अल्टीमेटली हमारा F1 अपॉन F2 कितना आ गया. सो F1 अपॉन F2 इक्वल टू हाउ मच F1 अपॉन F2 जो हमारा आ गया कितना आ गया F1 अपॉन F2 हमारा जो आ गया 12 अपॉन कितना आ गया 12 अपॉन 11. सो हमारा F1 और F2 के बीच का जो F1:F2 आ गया वो कितना आ गया 12:11. क्लियर? सो F1 और F2 के बीच का जो रिलेशन आ गया 12:F1 आ गया. तो अल्टीमेटली हमारा जो ऑप्शन इसमें आ जाएगा ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो करेक्ट ऑप्शन हमारा कितना आ गया करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दिस क्वेश्चन. What about the next question? 3 equal masses जिनका सबका मास सेम है और वर्टिसेस रेक्टेंगल ABC साइड है. इनिशियल स्टेज में t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी सबको दी जाती है v0. सबकी इनिशियल वेलोसिटी v0. यूनिट फोर्स लगे हुए हैं. If 3 masses interact gravitationally then magnitude of net angular momentum of the system at the point of collision what we have to find out. This question is what is given in this figure. क्वेश्चन हमारा ये है समझिए इसको. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ले लेते हैं. यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये आपका ये है ये बी है और एक सी है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबकी साइड दिया हुआ है ए स्मॉल इज द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल. अब इसमें कह रहा है यहाँ पर जो पार्टिकल सभी पर पॉइंट वर्टिसेस पे आपका हर जगह मास एम रखे हुए हैं. यहाँ पर मास एम रखे हुए हैं. क्लियर? अब सभी की जो इनिशियल वेलोसिटी है v0 इनिशियल यानी क्या होगा फर्स्ट ये आप बी वेलोसिटी से इधर आएगा मान लो यहाँ पर आता है और ये बी जो है आपका कहाँ जाता है बी ए की तरफ आता है मान लो इनिशियल स्टेज में यहाँ आता है और सी जो है सी बी की तरफ आता है दिया हुआ है. एवरीथिंग हैज बीन गिवन. हमारा बी ए क्या गिवन है v0 AC. जो बी ए गिवन है बी ए गया है v0 AC इस डायरेक्शन में ये जो है पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है और जो हमारा बी है इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो बी जो बी है क्या है
बी नॉट बी ए इस डायरेक्शन में है। और जो सी है, सी हमारा जो बी सी की वैल्यू है वो क्या है, बी नॉट सी बी, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस पार्टिकल मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। At t is equal to 0, they all are having the same velocity, that is v naught. सबकी velocity v naught है. Clear? After time t, this let the particle is coming here, and this is coming here, and this is coming here. तो t टाइम के बाद, थोड़ी टाइम के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएंगे ऐसे, ठीक है. आफ्टर सम टाइम अगेन दे आर कमिंग ऑन दिस ट्रैक, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा. तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, अब जो ट्रायंगल आपका बना वो ये बना. After some time, this particle will come here, this particle will come here, and this particle will come here. तो अगेन जो ट्रायंगल बना हमारा बना, तो अल्टीमेटली इनका कोलिजन कहाँ पर होगा, इनके सेंट्रॉइड पर होगा. अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आफ्टर सम टाइम दे आर कोलाइड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल. अब सिंस दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है. साइड्स ये है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और सेंट्राइड इसका भी हमने देखा कि जो कोलिजन होगा तीनों पार्टिकल का सेंट्राइड पर होगा. और सिंस हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी जो हाइट होगी, तीनों साइड की हाइट जो है सेम होगी ये चीज, और जो एंगल से भी होंगी ये भी आपके क्या होंगे, सेम होंगे आपके, मतलब बाइसेक्ट करेगा इस टाइप से कुछ करके. तो अल्टीमेटली जो हमारा एंगल ये है टोटल, सिंस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो ईच एंगल इज 60 डिग्री, तो ये जो एंगल हमारा होगा 30 डिग्री होगा. और यहाँ से यहाँ तक की जो साइड होगी वो ये वाइट होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. अगर हम इसको आर मान लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, तो यहाँ से हमारा tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री विल बी व्हाट, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो कितना हो गया, परपेंडिकुलर आर है, हमारा बेस कितना होगा a/2. तो अल्टीमेटली tan 30 हमारा कितना आ गया, 2r/a. और tan 30 की वैल्यू हमारी होती है √3 इज इक्वल टू 2r/a. तो यहाँ से हम अपने निकालिए आर की वैल्यू कितना जाएगी, आर विल बी, यहाँ से जो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितना आ जाएगी, आर इज इक्वल टू a/2√3, a/2√3. दिस विल बी आर. यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारा कितना भी आ रहा है. अब नेट जो मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन कितना हो जाएगा. जो नेट एंगुलर मोमेंटम, जो हमारे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम बी आर होता है, एम बी आर. और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो अभी हमने आर निकाला है, क्या निकाला है हमने, जो हमने आर निकाला था, आर की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, आर जो हमारी वैल्यू आई थी कितनी आई थी, आर की वैल्यू आई है a/2√3. अभी हमने कैलकुलेट किया. क्लियर. तो एंगुलर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा हमारा, मास इंटू वेलोसिटी हमारे v नॉट है, और आर की वैल्यू हम आ गई a/2√3. दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल. बट हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर, पार्टिकल्स आर 3 पार्टिकल्स आर देयर जिनका सबका मास m है. तो टोटल मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा हो जाएगा, आप इसको टोटल ले लीजिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम इट विल बी इंटू 3, यानी एम बी नॉट इंटू a/2√3 और इंटू 3. दिस विल बी द टोटल एंगुलर मोमेंटम. इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा कितना आ गया, एल इक्वल टू हमने क्या किया, एम बी नॉट इंटू कितना हमने किया था, a/2√3, a/2√3 और इंटू 3 को हम लिख सकते क्या, √3 इंटू √3. इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो वर्क विल बी √3/2 हम बाहर ले लेते हैं, √3/2 और कितना आ गया, am b naught. This is what total angular momentum of the system. This is what total angular momentum कितना गया, √3/2 am b naught. तो हमारा ऑप्शन क्या क्या गिवन है, ऑप्शन में हमारा क्या है, ये दिस सेकंड विल बी द am b naught. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कितना हो गया, करेक्ट ऑप्शन विल बी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया, करेक्ट ऑप्शन है बी. क्लियर. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट
क्या क्या है बेटा? फर्स्ट हमारा जो असर्शन में क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज लॉन्गर एट द टॉप ऑफ ए माउंटेन देन दैट ऑफ बेस। एंड द सेकंड क्या है, सेकंड पार्ट है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस विद इंक्रीज वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वाइस वर्सा। अब इसमें हमें ऑप्शंस बताना है क्या क्या है। देखो टाइम पीरियड ऐसा लिखिए, देखिए मान लिया हमारे पास अर्थ है और यहाँ पर मान लीजिए कोई माउंटेन है, यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे मान लीजिए कोई माउंटेन है जिसकी जो हाइट है वो क्या है, एच है, एच है हाइट। हमें पता है कि अर्थ के सरफेस पे जो वैल्यू होती है जी की जी होती है, और एक सर्टेन हाइट पे मान लो यहाँ पर सर्टेन हाइट है, यहाँ पर जी डैश है। एज वी मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ जी डिक्रीजेस, तो जी डैश हमारा क्या होता है, जी 1 माइनस 2h बाई आर रेडियस ऑफ अर्थ। सो एज वी मूव फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टुवर्ड्स अपसाइड, वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो क्या होती है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होगी एज कम्पेयर टू जी। और हमें पता होता है जो सिंपल पेंडुलम को जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर ए सिंपल पेंडुलम। अब अगर जी की वैल्यू कम है, कंपैरेटिवली कम हो गई, तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। व्हेन जी डिक्रीजेस टी विल इंक्रीज, जैसे जैसे हमारा जी डिक्रीज करेगा टाइम पीरियड हमारा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हमारा जी की वैल्यू डिक्रीज होगी टाइम पीरियड हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा एज पर फार्मूला। सो हमारा जो फर्स्ट असर्शन है क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट द टॉप ऑफ ए माउंटेन देन दैट ऑफ द बेस ऑफ द माउंटेन। तो नेचुरली टाइम पीरियड हमारा क्या है, चूंकि जी की वैल्यू कम हो गई तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो असर्शन इज करेक्ट। एंड करेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हमने पढ़ा कि जो टाइम पीरियड हमारा होता है क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब इसमें क्या, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, टाइम पीरियड कम होगा, और अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, बोथ आर एंड ए आर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा जो ऑप्शन है क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया ए। करेक्ट ऑप्शन जो हमारा इसका आ गया, करेक्ट जो ऑप्शन है हमारा इसका क्या आ गया, इज ए। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। If the diameter of the reduced one third of the original value, the mass remains unchanged, then the acceleration due to gravity of Earth is। क्या क्वेश्चन है कि अगर मान लो हमारे पास अर्थ है जिसकी रेडियस r है और इसके सरफेस पे जो वैल्यू है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की g है, तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब क्वेश्चन में दिया है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे तो जी है, इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस टू वन थर्ड ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू एंड मास रिमेन्स अनचेंज्ड। ये जो आपकी अर्थ है, अब ये अर्थ छोटी हो गई, जिस अर्थ बिकम स्मॉलर, और इस केस में इसका जो मान लो डायमीटर बिगिनिंग में था, इसका बिगिनिंग में डायमीटर मान लो डी है, तो अब जो डायमीटर हमारा इसका हो गया, मान लो क्या हो गया, सेकंड केस में डी बाई 3 हो गया, वन थर्ड में रिड्यूस हो गया, लेकिन मास में कोई फर्क नहीं है, मास जो है दैट इज रिमेन सेम है। बट जो डायमीटर था, डायमीटर रिड्यूसेस टू, डायमीटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी बाई 3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब डायमीटर रिड्यूसेस 1/3, तो आपकी रेडियस भी 1/3 हो गया। अगर डायमीटर आपका डी बाई 3 हो गया तो रेडियस भी हमारी क्या हो जाएगी, वो भी r/3 हो जाएगी। क्लियर। सो हमारा जी डैश का जो नेक्स्ट फार्मूला हमारा आ गया, जी डैश क्या हो जाएगा, जी क्योंकि मास में तो कोई फर्क नहीं आ रहा है, जी एम अपान आर स्क्वायर, आर की जगह हम क्या डाल देंगे, r/3 का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, जी डैश कितना आ जाएगा, जी एम अपान आर स्क्वायर बाई 9, या इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं कि जी एम अपान आर स्क्वायर इंटू 9, जी डैश की वैल्यू। तो जी डैश हमारी कितना हो गई, जी एम अपान आर स्क्वायर इंटू 9, ये जी डैश की वैल्यू। और हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, जी है, तो जी डैश हमारा कितना होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 9, ये हमारे पास आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, द डायमीटर हमने इसको रिड्यूस कर दिया 1/3 जबकि मास रिमेन्स अनचेंज्ड, देन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज व्हाट,
कितनी वैल्यू आ गई 9g, 9g के आंसर आ गया इसका 9g। सो करेक्ट आंसर इसका कितना आ गया 9 टाइम्स आप जी, तो आंसर हो गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड इतना। फर्स्ट क्या है द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू ए प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड दस एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। तो ये तो हमारा क्या होगा केपलर सेकंड लॉ हो गया, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा ये सेंट्रल फोर्स फील्ड। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सेंट्रल फोर्स फील्ड। सेंट्रल फोर्स फील्ड, central force field is a type of force which is always directed towards or away from a fixed center। यानी एक फिक्स सेंटर से या तो हमेशा दूर की तरफ लगता है या सेंटर्स की तरफ लगता है। इसके जनरल एग्जांपल्स हैं, इसको समझते हैं। एग्जांपल्स मिल लीजिए, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है इक्वल टू क्या है जी एम, एक ऑब्जेक्ट इनटू मान लो दूसरा ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है दैट फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। सो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव होता है, यानी टुवर्ड्स सेंटर की तरफ काम कर रहा है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर हमारे Q1 और Q2 दोनों सिमिलर चार्जेज हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, यानी जो फोर्स होगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा। एंड इफ द Q1 एंड Q2 आर ऑफ अपोजिट साइंस देन फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा एंड जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स सेंटर लगेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इनमें जो हमारी फोर्स होती है या तो सेंटर की तरफ लग रहे हैं या तो अवे लग रहे हैं। तो इस टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं सेंट्रल फोर्स फील्ड। और सेंट्रल फोर्स फील्ड की एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो टार्क अबाउट द सेंटर इज जीरो होता है। जो टार्क होता है हमारा, टार्क जो होता है वो अबाउट सेंटर इज जीरो। टार्क अबाउट सेंटर इज जीरो। अबाउट द सेंटर जो होता है वो जीरो होता है, इज जीरो, जीरो। तो टार्क हमारा जीरो होता है। अब एक चीज हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि जो टार्क होता है, टार्क जो हमारा होता है क्या होता है डी एल अपॉन डी टी। एल क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम है। तो अगर टार्क जीरो है, अब इफ दिस इज जीरो इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा एल होगा वो कांस्टेंट होगा। एल जो है हमारा कांस्टेंट होगा। तो जो फार ए सेंट्रल फोर्स फील्ड एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो ये भी चीज सही हो गया। अब क्वेश्चन बनता है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो हम इसके लिए मान लो जो हमारे पास केपलर्स का जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया जो है हमारा, मान लीजिए कि ये यहाँ पर सन है और प्लैनेट्स मान लीजिए कि हमारा एक बी वेलोसिटी से यहाँ रिवॉल्व कर रहा है। एक एरिया ये हो गई और दूसरी एरिया हमारी ये हो गई, जो जहाँ पर प्लैनेट की वेलोसिटी थोड़ा सा कम है इस एरिया में। ये हमारा आर्म है, ठीक है। और इसकी जो एरिया हो गई, मान लो यहाँ पर प्लैनेट पी से पी डैश पे आ गया, पी से पी डैश पे, और इसकी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है हमारी बी है, बी वेक्टर है। तो जो एरिया सेप्ट होगी ये वाली एरिया, यानी सन से लेकर के इस वाली एरिया जो होगी वो क्या होगी डेल्टा ए जो हम ले लेते हैं। व्हाट विल बी डेल्टा ए, हाफ इंटू आर वेक्टर और पी पी डैश, हम इसको ले सकते हैं पी पी डैश। और इसको हम क्या ले सकते हैं, जो हमारा पी पी डैश है, पी पी डैश हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी पी डैश की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। अगर मान लो वेलोसिटी बी है डेल्टा टी टाइम के लिए, मान लो यहाँ से यहाँ तक का टाइम डेल्टा टी है, टाइम जो है अगर वो डेल्टा टी है, तो ये जो पी पी डैश है कितना हो जाएगा, पी पी डैश कितना हो जाएगा बी इंटू डेल्टा टी, बी इंटू डेल्टा टी। तो हम यहाँ पर इस पी पी डैश की जगह ले सकते हैं हाफ इंटू आर इंटू बी इंटू डेल्टा टी, बी इंटू डेल्टा टी। और हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हम वेलोसिटी की जगह क्या ले सकते हैं, बी विल बी व्हाट पी अपॉन एम, पी अपॉन एम। तो यहाँ पर हमने पी अपॉन एम दिया, तो ये चीज हमारी कितना हो गई हाफ आर वेक्टर इंटू बी, बी डैश की जगह लिखिए पी अपॉन एम, पी अपॉन एम डेल्टा टी।
क्लियर, ये हमारा डेल्टा ए है। अब हम डेल्टा टी को इधर लाते हैं, हम इस डेल्टा टी को यहाँ ला दें डिवीजन में, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी विल बी व्हाट, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी विल बी हाफ आर क्रॉस पी अपॉन एम, हाफ आर क्रॉस पी अपॉन एम इजिकल टू क्या बन गया हमारा, हाफ आर क्रॉस पी अपॉन एम, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/2m और आर क्रॉस पी, और आर क्रॉस पी क्या होता है हमारा, जो ये होता है एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा आर क्रॉस पी। तो अल्टीमेटली हमारा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी विल बी व्हाट, आर क्रॉस पी की जगह हमने क्या रख दिया, इस आर क्रॉस पी की जगह हमने रख दिया इस एल, तो क्या बन गया 1/2m इंटू एल बन गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, एल अपॉन 2m। अब हमें पता है कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी जो हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, और यही हमारा क्या है, केपलर सेकंड लॉ। तो in this way we have seen that this a central force field, the angular momentum is constant is the correct explanation of this assertion। इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। तो लेट अस सी व्हाट आर द ऑप्शंस प्रेजेंट हियर। ऑप्शंस हमारे क्या हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट, ये भी नहीं है क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए इज फॉल्स बट ये भी गलत है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया, क्या आ गया इसका, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन इसका डी। क्लियर। if a satellite if a satellite orbiting the earth 9 times closer to the earth than the moon, what is the period of rotation of the satellite? Given the rotational time period for moon is 27 days and gravitational attraction between the satellite and the moon is neglected। ये लेट दिस इज अर्थ, यहाँ पर एक सैटेलाइट घूम रहा है और एक मून भी आपके अर्थ के चारों तरफ राउंड लगा रही है। तो अगर अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ से मून के बीच, ये मून है मान लो, दिस इज मून के बीच की अगर डिस्टेंस हमारा आर है, तो इसके और इसके जो हमारा सैटेलाइट है, दिस इज मून एंड दिस इज व्हाट, सैटेलाइट, दिस इज सैटेलाइट। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस हो कितना है, r/9, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। दिस डिस्टेंस अगर r/9 है तो ये डिस्टेंस हमारी r है। सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ और मून रिवॉल्व कर रही है अर्थ के चारों तरफ। तो मून का टाइम पीरियड जो t1 गिवन है, t1 हाउ मच टाइम पीरियड फॉर मून, टाइम पीरियड कितना है फॉर मून के लिए हमारा टाइम पीरियड फॉर मून टाइम पीरियड कितना है 27 डेज। और डिस्टेंस बिटवीन दिस अर्थ एंड मून कितना हो गया, जो डिस्टेंस है इसके बीच, डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस को अगर हम मान लेते हैं r1 को हम r मान लें, डिस्टेंस को, इसके बीच की डिस्टेंस जो है r1 को हमने r माना हुआ है। क्लियर। और टाइम पीरियड हमारा किसका निकालना है, सैटेलाइट का टाइम पीरियड, हमें सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना है, वो हमें निकालना है। और हमें r2 जो सैटेलाइट की डिस्टेंस जो r2 है, दैट आल्सो हैज बीन गिवन r/9। सो यूजिंग दिस केपलर्स सेकंड लॉ, केपलर्स लॉ को भाई हम यूज कर लेते हैं, केपलर्स लॉ को यूज करिए। क्या है केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड, t1 मतलब टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r³ हमें पता है, या हमें फार्मूला होता है t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब। इस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए। तो t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r का क्यूब अपॉन r/9 का क्यूब। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, t1 की स्क्वायर, दिस t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर विल बी व्हाट, r1 का क्यूब, r क्यूब अपॉन कितना आ गया था हमारा, r क्यूब इंटू कितना था हमारा, r क्यूब इंटू आपका आ गया एक तरह से 9 का क्यूब यहाँ हमारा कर सकते हैं। क्लियर।
तो यहाँ से हमारा आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर हमारा है 27 का स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया था 9 इंटू 9। तो यहाँ से हमारा T2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, T2 स्क्वायर विल बी व्हाट 27 इंटू 27 अपॉन 9 इसको कैंसिल कर दिया तो अल्टीमेटली हमारा क्या गया 9/9 यानी 1 आ गया। सो T2 स्क्वायर हमारा कितना आ गया, T2 स्क्वायर हमारा जो आ गया कितना आ गया 1 आ गया। सो T2 विल बी व्हाट 1। सो अल्टीमेटली इसका टाइम पीरियड आ गया 1 डे। क्लियर, जो सैटेलाइट है उसका जो टाइम पीरियड है कितना आ गया 1 डे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज 1 डे। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, एंड देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, दिस इज व्हाट ए सैटेलाइट इज लॉन्च इनटू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर में कोई ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ए सेकंड सैटेलाइट इज लॉन्च इनटू द ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्बिट इज लार्जर देन कितना से है। यानी अगर मान लो हमारे पास अर्थ है, एक सैटेलाइट हमारा यहाँ है रिवॉल्व कर रहा है, इसकी रेडियस आर है, और दूसरा सैटेलाइट थोड़ा सा हायर डिस्टेंस पे है और मान लीजिए कि इसकी जो रेडियस है वो दिया हुआ है, हाउ मच, इसकी रेडियस जो है वो कितना है 1.03 आर। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द, कितना परसेंटेज इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है इस सैटेलाइट का एज कम्पेयर टू दिस सैटेलाइट। दो सैटेलाइट्स है, one is revolving around Earth at a radius of r and other is radius 1.03. So again we have to use that Kepler's law. तो फर्स्ट का जो हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट कितना है, फर्स्ट सैटेलाइट की बात करते हैं। फर्स्ट सैटेलाइट रेडियस इसकी हम ले लेते हैं क्या, जो r1 है हम उसको r ले लेते हैं, हमें पता है। और जो इसका टाइम पीरियड है हम इसका T1 ले लेते हैं फर्स्ट के लिए, टाइम पीरियड जो T1 है, टाइम पीरियड इसका T1 ले लेते हैं। और जो सेकंड सैटेलाइट है, सेकंड सैटेलाइट जो हमारा सेकंड है, उसके लिए जो R2 है वो हमें पता है कितना 1.03 आर, और इसका टाइम पीरियड हम निकालते हैं T2। T2 हमें T1 के टर्म में निकालना है कि इन टर्म्स ऑफ T1 क्या करेंगे, हमारे पास फिर से अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस केपलर्स लॉ, जो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, ये तो हमें ठीक। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या बन जाएगा, T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर विल बी व्हाट R क्यूब अपॉन 1.03 R का होल क्यूब। दिस इज, तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर विल बी व्हाट, ये इसकी वैल्यू हो गई R का क्यूब, और इसको आप लिख सकते हो क्या 1.03 का क्यूब इंटू R का क्यूब। क्लियर, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, T1 का स्क्वायर 1/1.03 का होल क्यूब। तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1.03 का होल क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 प्लस 0.03 का होल क्यूब, या T1 अपॉन T2 विल बी व्हाट, T1 अपॉन T2 विल बी व्हाट 1/1 प्लस 0.03 की पावर 3/2। अब हम बाइनोमियल लगा सकते हैं, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है 1 प्लस एन एक्स फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ दिस एक्स। तो यहाँ पर क्या फार्मूला बन जाएगा, T1 अपॉन T2 का, T1 अपॉन T2 विल बी व्हाट 1/1 प्लस 3/2 इंटू 0.03, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 1/1 प्लस
इसको सॉल्व कर लिए तो 0.045 यानी 1/1.045. So T1 upon T2 is what? So T1 upon T2 will be 1/1.045. यहाँ से हमारा T2 कितना आ गया? T2 will be what? 1.045 T1. एक रिलेशन आ गया हमारा T2 is equal to 1.045 T1. Clear? Now we have to find out the percentage change. So T2 is how much? Percentage change. What will be the percentage change? Percentage change कैसे निकालेंगे यहाँ पर? Percentage change will be what? Percentage change will be what? T2 minus T1. T2 minus T1 upon T1 into T2 minus T1 upon T1 into 100. So what will be? T2 minus T1 कितना है? T2 कितना है? 1.045 T1 minus T1 upon T1 into 100. So परसेंटेज चेंज हमारा कितना जाएगा? 0.045 into 100. This will be 0.045 T1 upon T1 into 100. How much? T1 से T1 4.5%. 4.5%. So correct option हमारा क्या हो जाएगा? Correct option will be what? 4.5%. यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया बी. करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो आ गया बी ऑप्शन आ गया. क्लियर? विश यू ऑल द बेस्ट.